Topic is need of regional planning or importance of regional planning or relevance of regional planning or why regional planning or role of regional planning. The need of regional planning in the context of this particular topic, there are so many questions arises. For example, importance of regional planning or relevance of regional planning or why regional planning or role of regional planning. Regional planning is a geotechnology of reorganizing the regional space for the comprehensive development with a view to provide ideal living conditions to all human communities in all regions of human occupants, not in isolation from each other but integration with each other. There are certain facts they are discussed in the context of regional planning. By discussing those points, we can understand the need of regional planning. First one, the existence of separate or different cultures and political identities. Regional planning becomes a response to a strong feeling of regionalism as well as an element of cohesion. Second one, that is functional problems which are especially manifested. For example, problem of urban regions related to rapid urbanization, urban sprawl, population growth, etc. Second, problem of depressed industrial and rural areas suffering from economic malaise. Third, facilitate national and regional socio-economic integration by bringing regions to be active participants in the development efforts. Next one, number 4, that is mobilization of locals, human and financial resources, governments and donors towards creation of economic opportunities in different regions, partnership. Next, number 5, provision of essential link between national and local levels plans, for example, information giving. Next one, regional planning provides policy guiding framework to both local and national plans. Next one, information base for national local plans regarding resource and potential and priorities of a region soil. Next one, number 8, provide essential strategic cross-cutting infrastructures linkages to facilitate inter and intra-regional flow of trade communication. Next, number 9, respond best to the need of the regional and local communities than the national development plan. Next, number 10, promotes community-based development strategy and opportunities for people to participate more directly in development and project implementation process. Next number, regional planning also helps in reducing the conflict and competition
for resources between cities in a region, developing small towns or satellite towns help in relieving the stress from higher order towns, thus increasing efficiency. Next one, that is 12 regional plans take into account the economic, spatial and environmental goals and tries to address national level issues. प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता, प्रादेशिक नियोजन की महत्ता, प्रादेशिक नियोजन की प्रासंगिकता, प्रादेशिक नियोजन की भूमिका और प्रादेशिक नियोजन क्यों किया जाए, इन विषयों के संदर्भ में जो विवेचन किया जाता है या किया गया, उसमें इस प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसी के संदर्भ में इन डिफरेंट टॉपिक्स को जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, इनका भी उत्तर दिया जा सकता है या इनके प्रश्नों का जवाब भी हम दे सकते हैं। चाहे हम प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता कहें, चाहे उसकी प्रासंगिकता कहें, चाहे महत्ता कहें, और चाहे हम ये कहें कि प्रादेशिक नियोजन क्यों आवश्यक है या प्रादेशिक नियोजन की विकास में क्या भूमिका है, इन सभी प्रश्नों का समाधान हम निम्नलिखित तथ्यों या निम्नलिखित बिंदुओं के डिस्कशन के बाद कर सकते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास। नेचुरल रिसोर्सेस जो उस क्षेत्र विशेष में या प्रदेश में विद्यमान हैं, उनका सतत विकास को ध्यान में रखकर कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पर संसाधनों को समझने के लिए हम उसकी परिभाषा को समझ लें। कुछ संसाधन इस प्रकृति के विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, जिनका मनुष्य अपने क्रियाकलापों को, अपने जीवन स्तर को चलाने के संदर्भ में प्रयोग करता है, और उन तत्वों में फंक्शनलिटी या कार्यात्मकता तथा उनकी उपयोगिता होती है। ऐसे तत्वों को हम संसाधन कहते हैं। वे तत्व सभी जो किसी तरह मानव प्रयोग में आते हैं, वे प्राकृतिक हों चाहे मानवीय, संसाधन कहलाते हैं। इन्हीं संसाधनों का पोषणीय विकास या समृद्ध विकास या शाश्वत विकास करने के लिए हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो विनष्ट न हो और अधिक से अधिक हम इन संसाधनों का उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, एक अनुकूलतम उपयोग करें, जिससे ये संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें और हम आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लें।
इस तरीके से हम अपनी भविष्य में आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रख सकते हैं और इन प्राकृतिक संसाधनों का एक समुचित उपयोग कर, जो उपयोग विदोहन से रहित होगा, अर्थात हम इन साधनों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे बल्कि उनका संरक्षण करते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम इन संसाधनों का उपयोग करें। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड ऑफ रीजनल प्लानिंग। नंबर 2, प्रादेशिक आय में समानता। जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रदेश हैं, उनमें जो रहने वाले लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक स्थिति या इनकम, उसमें इक्वलिटी आ सके, इसके लिए कैसे हम उस समानता को प्राप्त कर सकते हैं, इनकम की समानता जिससे हो सके, इन तथ्यों को भी हम ध्यान में रखते हैं, जिससे उस प्रदेश के लोगों की जो आय है उसमें समानता को लाया जा सके और उनके जीवन को स्तरीय बनाया जा सके। नेक्स्ट, नंबर 3, रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना। उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जो रीजनल प्लान्स बनाए जा रहे हैं, प्रादेशिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनमें अधिक से अधिक कैसे रोजगार का सृजन किया जा सके, जिससे उस प्रदेश विशेष में या क्षेत्र विशेष में जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। इस पर भी हम विशेष ध्यान देकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल लेवल लिमिटेड रिसोर्सेज दे आर अवेलेबल। किसी भी क्षेत्र में वहाँ किस तरीके के स्थानीय संसाधन हैं, उन संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, अर्थात हम उनको अधिक से अधिक यूटिलाइज कर और कम से कम उनका एक्सप्लॉयटेशन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जिससे वो संसाधन भविष्य में सुरक्षित रह सके और हम उस संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। ऐसे संसाधनों का मूल्यांकन हमें सबसे पहले कर लेना होगा कि कौन से विभिन्न संसाधन हमारे उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में या प्रदेश में विराजमान हैं या मौजूद हैं, उनका कैसे हम अधिक से अधिक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ लिवलीहुड, जीवन स्तर में सुधार। तो इन्हीं विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर, जिसमें मानव की बुद्धि, उसकी तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे हम
उन क्षेत्रों में विराजमान विभिन्न प्रकार के तथ्यों को अधिक से अधिक कॉम्प्रहेंसिव जानकारी प्राप्त कर उनका क्या भविष्य में इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे उसके फार्म को चेंज किया जाए और उस संसाधन से अधिक आय हो सके और उस आय से वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधर सके या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट नंबर 7, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा में विशेषज्ञों की व्यावसायिक गतिविधि के क्षेत्र, राज्य और समाज, स्टेट एंड सोसाइटी, आर्थिक अभिनेता, इकोनॉमिक एक्टर्स और इकोनॉमी, आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्थिक वित्तीय संगठन और संस्थाएं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स, विभिन्न प्रकार के उद्यम, राज्य एवं नगर निगम, स्टेट एंड नगर निगम्स, इनकी सेवाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट वन, दैट इज यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। डिफरेंट प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं, जिनमें रेल और रोड मुख्य रूप से, जिनको हम अर्थव्यवस्था की धुरी कह सकते हैं, जिस तरीके से हमारे शरीर में विभिन्न वेन्स में ब्लड चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार किसी प्रदेश को इन यातायात के माध्यमों से शक्ति प्राप्त होती है या उसकी महत्ता बढ़ती है और उस क्षेत्र विशेष में डिफरेंट प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, चाहे वो मोबाइल से संबंधित हों, चाहे कोई डाक से संबंधित हों या अन्य तरीके कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, जिनमें GIS, GPS इत्यादि जो वर्तमान में भूगोल के रिमोट सेंसिंग इत्यादि, इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है, जिससे इस बिंदु को हम प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है या इसकी क्या भूमिका है या इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, औद्योगिक वातावरण का विकास। उस क्षेत्र में विद्यमान डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल, लेबर, स्किल लेबर, कैपिटल, इन तथ्यों को सम्यक रूपेण विचार करने के बाद उस क्षेत्र में किस प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, औद्योगिक संश्लिष्ट स्थापित किए जाएं या स्थापित करने के संदर्भ में विचार किया जाए, जिससे
उस औद्योगिक प्रतिष्ठान को स्थापित करने के बाद वहाँ के क्षेत्र का या वहाँ जो मानव संसाधन है उसका समुचित उपयोग करते हुए उस पर्टिकुलर प्रदेश विशेष या देश विशेष का हम विकास कर सकें। ऐसी औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक उचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। राजनीतिक स्थिरता एक देश एक चुनाव सिस्टम के आधार पर सरकार बनने के बाद किन्हीं कारणों से अगर वो गिर जाती है तो तय समय सीमा के बाद ही चुनाव होगा। इसके अलावा अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो भी ये तय रहेगा कि अलग अलग चुनाव अगला चुनाव एक तय समय सीमा के बाद ही होगा। ऐसे में राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी। अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं बनी रहेगी तो हमारा जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो हावी हो जाएगी और वो मनमाने आदेश पारित कर इस प्रादेशिक विकास को बाधित कर सकती है। इसलिए राजनीतिक स्थिरता आवश्यक बिंदु है जिसको प्रादेशिक नियोजन करते समय ध्यान में रखना होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रादेशिक नियोजन कैसे किया जाए। इसके लिए कई स्तर हैं जिनमें प्रादेशिक नियोजन किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश के लिए, प्रदेश के नियोजन के लिए बहुस्तरीय प्रदेशों के संदर्भ में किया जाने वाला नियोजन अधिक उपयुक्त होता है। क्यों उपयुक्त होता है, उसके लिए कारण है क्योंकि कोई भी देश मानव और प्राकृतिक संसाधनों के विविधतापूर्ण वितरण से भरा रहता है और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही मानवीय कार्यों का वितरण प्रभावित होता है। अतः देश को विभिन्न स्तरीय प्रदेशों में बांटकर नियोजन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में डॉक्टर आर.पी. मिश्रा एंड अदर्स जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने एक मॉडल या एक स्तर बताया जिस स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रादेशिक नियोजन किया जाना चाहिए। उसमें नंबर 1 पर इस राष्ट्र, नेशन, नंबर 1 पर उन्होंने रखा नेशन, उसके बाद इंटर स्टेट, मैक्रो रीजन्स,
मैक्रो रीजन्स। इंटर स्टेट मैक्रो रीजन्स, पहला राष्ट्र नेशन, दूसरा इंटर स्टेट मैक्रो रीजन्स अंतरराज्यीय बृहद प्रदेश, और तीसरे नंबर पर स्टेट राज्य। अगला नंबर 4 इंटर डिस्ट्रिक्ट मेसो रीजन्स। इंटर डिस्ट्रिक्ट मेसो रीजन्स, हिंदी में अंतर जनपदीय मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन रीजन्स। डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन्स जनपदीय या महानगरीय प्रदेश। और नेक्स्ट डेवलपमेंट ब्लॉक्स, तालुका डेवलपमेंट ब्लॉक्स, तालुका एंड सिटी रीजन्स। डेवलपमेंट ब्लॉक, तालुका, सिटी रीजन, दैट इज इन हिंदी विकास खंड, तहसील और नगरीय प्रदेश। और अंतिम दैट इज विलेज, ग्राम। तो these are the different levels of रीजनल प्लानिंग। इन स्तरों को अपनाकर हमें बहुस्तरीय नियोजन करना चाहिए। इस प्रक्रिया के द्वारा उस प्रदेश का समुचित विकास हो सकता है। इस प्रादेशिक नियोजन के मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं, दैट इज theories of regional planning, प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत, जिनमें नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट नंबर 2 इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Even distribution of
इकोनॉमिक ग्रोथ। इस आर्थिक वृद्धि का जो वितरण हो वो क्या कैसा होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। अर्थात इस प्रादेशिक नियोजन के मुख्य दो सिद्धांत हैं, नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि, और दूसरा इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम किसी भी एरिया के प्रादेशिक नियोजन की एक योजना तैयार कर प्रदेश का विकास कर सकते हैं, और इस प्रदेश के विकास के लिए जो प्रोसेस होगी उसको हम कैसे अपनाएं, इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखें। रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास। इस प्रादेशिक विकास को कैसे किया जा सकता है, उसके लिए प्लानिंग प्रोसेस, नियोजन प्रक्रिया, इम्प्लीमेंटेशन, इस प्लानिंग प्रोसेस को कार्यान्वित करना और इसकी गवर्नेंस। इसको कैसे गवर्न किया जा सके, this is regional development strategy। फिर से देखें, रीजनल डेवलपमेंट प्रादेशिक विकास करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक प्लानिंग प्रोसेस को अपनाएंगे, अर्थात योजना बनाएंगे। उस योजना की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे उसको कार्यान्वित किया जाएगा और कैसे हम इस योजना का गवर्नेंस करेंगे, अर्थात इसको मॉनिटर करेंगे। इसको हम कहेंगे स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, अर्थात उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष या प्रदेश के लिए अपनाई जाने वाली विकास की रणनीति। इस मॉडल या इस मॉडल को अपनाकर हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास कर सकते हैं जो आर्थिक रूप से कम विकसित हैं। ऐसे प्रदेशों में उनकी प्रकृति को ध्यान में रखकर हम वहाँ पर जो उसके डोमेस्टिक अर्थात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये विभिन्न प्रदेश हैं, इनमें जो कम विकसित क्षेत्र हैं उन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा और इस रणनीति को अपनाकर हम किसी क्षेत्र का प्रादेशिक विकास इस प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से
कर सकते हैं। थैंक यू।